Assalamu alaikum. Are we good to go? Assalamu alaikum, dear aspirants. My name is Sameer Rahman, a second year MBBS student at Sahiwal Medical College, and today I am your moderator. It is my pleasure to welcome you all on the second day of Sahilite Online Research Series by Sahiwal Medical College Society, Research and Academic Society, Sahiwal. I shall start the session in the name of Allah and invite Fatima Iqbal for recitation. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه يكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصي ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير. Sadaqallahul Azim. Our today's topic is abstract and manuscript writing. Once we are done by all the procedures of research, there comes the part to make sense of your results. For that, we have Dr. Noman Aziz with us today. He is HOD of Physiology Department, Staff Vice President RAS SLMC, author of more than 40 articles in renowned national and international journals. He is a data analyst and a critical thinker as well. My mentor, Dr. Noman Aziz. On to you, sir, please. जी अस्सलाम वालेकुम. Sami, am I audible? Yes, sir. Okay. अस्सलाम वालेकुम all. बच्चों कैसे हो सारे? I hope everyone is fine or doing good at their homes. Okay, let's start a session. और मैं पहले स्क्रीन शेयर करूंगा. एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास. प्रेजेंटेशन में लिखा तो बहुत कुछ हुआ है. मैं आपसे प्रेजेंटेशन शेयर भी कर दूंगा सारी. आप लोग उसको पर्सनली अपने यूज के लिए रख भी सकते हो जब भी आप आर्टिकल लिखने बैठो. तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें मैं एम्फेसिस करूंगा जो जरूरी है, उसको कुछ बताने की आपको कोशिश करूंगा इंशाल्लाह. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. Okay, this presentation is visible to everyone? Yes, sir. It is visible, sir. Presentation is visible, बच्चों? Yes, sir. It is visible. Okay, thank you. Okay, so my topic of presentation today is manuscript and abstract writing. My name is Dr. Noman, is just introduced by Sami. ओके, तो रिसर्च पेपर राइटिंग प्रोसीजर जो होता है ना, पहले तो हम देखेंगे आज हमने करना क्या है, सीखना क्या है इसमें. सो दिस इज माय लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज वर्कशॉप, that at the end of this workshop student will be able to identify and conceptualize the essential steps in research paper writing process and use time management strategies to plan for the successful and timely completion of a research paper project. So first of all, what is a research paper, what is a manuscript, what is a scientific paper? ये सब एक ही चीज के different नाम है. A scientific experiment is not complete until the results have been published and understood. A scientific paper is a written and published report describing original research results.
अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग तो एक बहुत बड़ा वर्ड है। इसमें बहुत कुछ आ जाता है, इसमें काफी सारी टाइप्स होती हैं जो आप लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं आज एड्रेस करने लगा हूँ ना, क्योंकि जो मेरे सारी की सारी ऑडियंस आज मेरे साथ है ना, मेरे साथ ऑडियंस सारे अंडर ग्रेड स्टूडेंट है मेरे। तो ये अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि मैं आपको ना ओरिजिनल आर्टिकल की राइटिंग बताऊं। वैसे तो इसमें रिव्यू आर्टिकल भी शामिल है, और इसमें केस रिपोर्ट्स भी होती हैं, और इसमें समरीज भी होती हैं कुछ, फिर इसमें कमेंट्रीज भी होती हैं, डिफरेंट चीजें हैं जो आप लिखते हैं। लेकिन मैं आज आपसे जो डिस्कस करने लगा ना, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द ओरिजिनल आर्टिकल। कि आप जो ओरिजिनल काम करते हैं, आप एक काम सोचते हैं, उस पर ओरिजिनल डाटा इकट्ठा करते हैं, वो बिल्कुल एक नया काम होता है। और जब डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, रिजल्ट बना लेते हैं, देन टू प्रोसीड टुवर्ड्स द राइटिंग। तो मैं उसकी बात करने लगा हूँ आज। मैं आप अपने क्वेश्चन जो आपके जहन में बच्चों आते जाएंगे ना, वो लिखते जाना अपने पास, इंशाल्लाह आई विल गिव यू अबंडेंट टाइम एट द एंड। क्योंकि मैंने जनरली ये देखा है जो जूम मीटिंग्स होती हैं, इस पे प्रेजेंटेशन से ज्यादा क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन पे काफी ज्यादा लर्निंग होती है सबकी। तो आप क्वेश्चन जो भी किसी के जहन में हो, राइट इट डाउन विद यू। Inshallah, at the end, I'll give ample time for answering your question as far as possible. So, what is a manuscript writing? The purpose of scientific writing is to communicate new scientific findings. That thus this must be clear, simple, and well-ordered communication to transmit new scientific findings. Scientific writing must use proper English, which gives a sense in fewest short words. एक तो सबसे important prerequisite ये है कि हमें English लिखनी आनी चाहिए। ये scientific paper writing का सबसे important prerequisite है। इफ वी आर नॉट गुड इन राइटिंग इंग्लिश, जैसे अगर हमें अच्छा एस्से नहीं लिखना आता, या हमें अच्छी स्टोरी राइटिंग इंग्लिश में नहीं आती है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी टफ फॉर अस टू बिगिन राइटिंग अ न्यू पेपर। तो इंग्लिश राइटिंग आपका ये तो प्री रिक्विजिट है, इसके बगैर आप रिसर्च पेपर नहीं लिख सकते। इंग्लिश ही क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक वेल एक्सेप्टेड लैंग्वेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर दिस रिसर्च पेपर राइटिंग। नॉर्मली मैंने देखा है रिसर्च पेपर जो मेरी रीडिंग से गुजरते हैं, उसमें ऐसा होता है कि कुछ ऐसे हैं जर्नल्स जो कि अपने अपनी लोकल लैंग्वेज में भी पब्लिश करते हैं। मैंने ईरानियन जर्नल्स ऐसे देखे हुए हैं, इजिप्ट में मैंने ऐसे जर्नल्स देखे हुए हैं जिन्होंने अरेबिक में इसको पब्लिश किया हुआ है, इराक में ऐसे जर्नल्स हैं कुछ। लेकिन द थिंग इज कि यूनिवर्सल जो सारी की सारी अप्रूवल है वो इसी लैंग्वेज से है, इंग्लिश लैंग्वेज से है, तो आपको वो आना चाहिए। सो ओरिजिन जो है ना इसका, इसका नॉलेज इज लॉस्ट विदाउट द रिटन वर्ड्स। ये कुछ एक मैंने ये लिया है कहीं से, मैंने इसको देखा, तो मैंने कहा इसका जरा आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि ये कैसे रिटन वर्क पहुंचा कैसे इसमें। सो याद रखिएगा कि आपको इस बात का भी आपके इल्म में होगा कि जब हमारे नबी पे कुरान पाक नाजिल हुआ था, तो नाजिल होने के बाद फिर सहाबा कराम क्या किया करते थे कि उसको पत्तों पे, उस वक्त पत्ते अवेलेबल होते थे, पेपर्स का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं था, पेपर्स होते थे लेकिन पत्तों पे लिख लिया करते थे, और वो लिख के उसको सेव कर लिया करते थे। और देन लेटर ऑन फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में इसको प्रॉपर एक रिटन कुरान पाक को शेप दी गई, जो वही आती थी हमारे नबी पे। तो बिल्कुल वैसे ही इसकी ना कुछ हिस्ट्री है इस रिटन की ना, कि आपको पता होगा, हमने समय देखा है हमारे हड़प्पा म्यूजियम में भी और मोहनजोदाड़ो में भी, उसमें केव पेंटिंग एंड इंस्क्रिप्शंस वर द फर्स्ट अटेम्प्ट टू लीव रिकॉर्ड्स। तो वो होता था कि जो देखते थे उसको ऐसे नोट कर लिया करते थे। Then about 2000 BC, so papyrus paper was used as a medium of communication. In 190 BC, parchment made from the animal skin came into use. ये एक उन्होंने एक मॉडिफिकेशन लेकर आए। फिर in 105 AD, Chinese invented, Chinese ने सबसे पहले पेपर की इन्वेंशन की थी। So knowledge could not be widely circulated with no effective duplication. ये भी मस्ट है, एक रूल है। फिर in 1100 AD, the Chinese invented movable type. In 1455 फिर गटनबर्ग था जिसने प्रिंटेड किया, उसने बाइबल को प्रिंट किया सबसे पहले। देन बाय द ईयर 1500 1000 कॉपीज ऑफ 100 बुक्स, उनको इनकैनाबुला का नाम दिया गया, जो प्रिंट किए गए। एंड फाइनली इन 1665 द फर्स्ट साइंटिफिक जर्नल वर्ल्ड पब्लिश। तो ये कुछ हिस्ट्री है पब्लिकेशंस की, मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर दूं, माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल। अच्छा, फिर इसमें ना जो सबसे पहले रिटन रिटन करने के लिए जो रूल बनाया गया ना, उसको एमरेट स्टोरी के नाम से कहा जाता है। एमरेट आर जस्ट फॉर आई फॉर इंट्रोडक्शन, एम फॉर मेथड, आर फॉर रिजल्ट्स, ए फॉर एंड डी फॉर डिस्कशन। सो बेसिकली ये बेसिक कंपोनेंट है जब आप पेपर लिखने बैठते हैं तो आप इसमें करते हैं। बस इसमें एक बात याद रख लीजिए, एक चीज और ऐड करनी है जो आई से पहले करनी है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। तो उसको एमरेट कर लें अब बजाय इमरेट करने के। तो अभी ये ओल्ड हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ कि एमरेट स्टोरी शुरू हुई और अभी इसमें एब्स्ट्रैक्ट ऐड हो गया। तो अर्ली जर्नल पब्लिश डिस्क्रिप्टेड पेपर्स, क्योंकि उस वक्त इतना ओरिजिनल पेपर होता नहीं था, ओरिजिनल काम नहीं होता था। लेकिन जब सेकंड हाफ 19th सेंचुरी में आया ना, जब मेडिकल फील्ड ने बहुत तरक्की करनी शुरू की, तो फिर उसमें हम टर्म यूज करते थे, मैंने हाईलाइट की हुई है सेकंड लाइन में, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। मैं पहले इसके बारे में बता दूं क्योंकि आगे भी इसकी बात होगी। बट रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब रिसर्च में ये होता है कि आपने जो काम किया है, अगर वो काम कोई और कर ले तो रिजल्ट सेम ही आने चाहिए जो आपके निकले। तो कहते हैं कि रिसर्च जो आपकी रिसर्च है ना, वो रिप्रोड्यूसेबल थी, वो वैलिड थी।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 19th सेंचुरी में ना, ये बड़ा वर्ड गूंजा ये कि यार रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट्स। तो जब रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात आई तो उसमें फिर पब्लिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, यार लिखा क्या है उसने, क्योंकि रिप्रोड्यूसिबिलिटी उसी बेस पे निकलनी थी। So the method section became all important since Louis Pasteur confirmed the germ theory of disease, क्योंकि लुइस पास्चर ने अपना मेथड बताया कि मैंने कैसे जर्म थ्योरी, कैसे जर्म के पहुंचा, उसने बैक्टीरिया की बात की थी, तो उसके बाद से मेथड सेक्शन ने बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार की है। फिर एमरेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिफिक पेपर स्टार्टेड टू डेवलप एंड फाइनली स्लोली प्रोग्रेस इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये फॉर्मेट है, मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, इट इज इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। यू हैव टू ऐड एब्स्ट्रैक्ट बिफोर इंट्रोडक्शन, दैट्स द ओनली एडिशन यू पीपल विल डू हियर। Coming to the organization of your manuscript, the most common is EMRAD होता है. If several methods were used to achieve directly related result, तो उसमें ये एक्सपेरिमेंटल सेक्शन हम ऐड करते हैं, स्पेशली जब कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो। अब मैं रिसर्च की टाइप्स में इस वक्त मैं नहीं जा रहा कि वो रिसर्च कितनी टाइप्स की होती हैं और उसमें क्या होता है, लेकिन आपको ब्रीफली बता दूं तो दो किस्म की होती है, एक ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। हम यूजली जो करते हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में या अपनी मेडिकल रिसर्च, हमारी यूजली स्टूडेंट अंडर ग्रेड लेवल पे ऑब्जर्वेशनल होती है, एक्सपेरिमेंटल बहुत कम होती है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल हो तो उसमें एक्सपेरिमेंटल सेक्शन अलग से ऐड करना पड़ता है। So a scientific paper is a written and published report describing original research results. It must be the first publication of original results. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पब्लिकेशन। आप में से जो बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको ये बात का पता होगा, मैं पहले कई दफा डिस्कस भी कर चुका हूँ। जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता देता हूँ कि बेटे जो ओरिजिनल रिसर्च है ना, वो ओरिजिनल का वर्ड सिर्फ ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल होनी चाहिए। वो काम ऐसा होना चाहिए जो पहले ना हुआ हो, और पहले हुआ भी हो तो आपकी विसिनिटी में एटलीस्ट ना हुआ हो। कि अगर साहिवाल का कोई डाटा है तो साहिवाल का वही वाला डाटा पहले पब्लिश ना हो, या पाकिस्तान के डाटा पे काम कर रहे हैं तो वो पहले पब्लिश ना हो, तो इट शुड बी द फर्स्ट पब्लिकेशन। इसलिए जो चॉइस ऑफ आर्टिकल है ना, जो चॉइस ऑफ पेपर है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट में लिखने से बहुत पहले होती है। So in a form whereby pairs of the author can repeat the experiment, test the conclusion, इतना clear होना चाहिए। In a journal or other source document readily available within the scientific community, तो ऐसे जर्नल में आपने पब्लिश करवाना है उसको कि वो अवेलेबल भी हो, ये ना हो कि हम किसी ऐसी जगह भेज दें जिसको कोई सर्च ही ना कर सके। So डेफिनेशन हमने कर ली है, उसका सिर्फ और है कि an accepted original scientific publication containing scientific information to enable peers to, अब इसका मकसद क्या होता है इसको पब्लिश करने का? टू असेस ऑब्जर्वेशन, टू रिपीट एक्सपेरिमेंट, टू वैल्यूएट द इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस, मस्ट हैव एन इम्पैक्ट आल्सो, अवेलेबल टू साइंटिफिक कम्युनिटी, अवेलेबल फॉर रेगुलर स्क्रीनिंग बाय वन और मोर ऑफ द मेजर रिकॉग्नाइज्ड सेकेंडरी सर्विसेज। देखो बेटे, आप जब कोई पेपर अपना लिखते हो ना, तो उसको इस तरीके से लिखना होता है कि कोई उसको दोबारा से पढ़ ले और उसकी दोबारा से चेक करना चाहे तो वो उसको कर सके। और इसमें हमें कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए कि हमारा पेपर क्यों कोई चेक करेगा। आप पेपर बेटे पब्लिश दो मकसद के लिए करवाते हो, एक आप करवाते हो कि अपना डाटा शो करने के लिए, देखें जी हमने ये रिजल्ट निकाले हैं, और दूसरा आप उस पर इतना श्योर भी होते हो कि इफ एनीवन वांट्स टू डू इट तो वो कर सकता है इसको, और करके देख ले उसके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे। इसमें कुछ ना इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए कि पूर एक्सपेरिमेंटेशन कैन नॉट बी मास्क्ड, एक सेइंग है मैंने इसमें यहाँ पे लिखी है कि पूर एक्सपेरिमेंटेशन कैन नॉट बी मास्क्ड बाय ब्रिलियंट राइटिंग, हाउएवर द पूर राइटिंग कैन मास्क द ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंटेशन। आपने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं ना की, तो आपका पेपर का कभी उस तरह का इम्पैक्ट जाएगा ही नहीं। मैंने कई ऐसी राइटिंग पढ़ी हुई हैं कि जिनका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब नीचे पढ़ता हूं तो पेपर में बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, और पेपर अभी आधा भी नहीं पढ़ा जाता, और उसमें से बंदा कहता है रहने दो यार, इनका काम मजे का नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि काम अच्छा नहीं है, काम अच्छा किया हुआ है, लेकिन लिखने का तरीका नहीं है। तो राइटिंग इज सो मच इंपॉर्टेंट। और उसमें पता है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो जो सेकंड लाइन मैंने यहाँ पे लिखे हैं स्लाइड में, कि अवॉइड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। साइंटिफिक पेपर लिखने का ये मतलब नहीं होता कि आपने बहुत मुश्किल इंग्लिश लिखनी है। यू हैव टू यूज सिंपल एंड क्लियर इंग्लिश। आपको जितनी आती है उतनी लिख दें, वो चलेगी, लेकिन जो बता रहे हैं ना वो क्लियर लिखें। वो कहते हैं कि अगर आपकी बताई हुई बात किसी को समझ नहीं ना आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो चीज आपके जहन में क्लियर नहीं है। तो जब हम कोई ऐसी राइटिंग लिखते हैं ना कि जो क्लियर इमेज ना दे रही है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि हमारे जहन में वो चीज क्लियर ही नहीं थी। तो अगर आपने रिसर्च बहुत सिंपल और बहुत क्लियर करके की हुई है तो उसको लिखना भी, आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बिग इशू, लेकिन आज उसको डिस्कस करते हैं कि उसमें इश्यूज क्या आ सकते हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट द पैराग्राफ इज द एसेंशियल यूनिट ऑफ थॉट। हमेशा अपने पैराग्राफ्स में लेके चलना होता है। बिफोर स्टार्टिंग टू राइट द पेपर, अब पेपर राइट करने से पहले ना, ये आज की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपसे मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। ये रैस जो कम्युनिटी हमारी इंशाल्लाह ये आप लोगों से शेयर कर देगी, सारी प्रेजेंटेशन मैं रैस से शेयर करूंगा। तो नंबर वन इंपॉर्टेंट जो है ना राइटिंग करते हुए, ये आपने पॉइंट याद रखना है, चूज द जर्नल फर्स्ट। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली हम ये करते ही हैं कि हम ना पेपर काम भी कर लेते हैं, पेपर राइटिंग भी शुरू कर देते हैं,
लेकिन पेपर राइटिंग जब कंप्लीट कर चुके होते हैं ना, तो फिर जर्नल चूज करने के लिए जाते हैं। जिन बच्चों ने मेरे साथ काम किया है, जिनका पेपर पब्लिश हुआ है या जिनका भी इन प्रोसेस हो रहा है, तो मेरे जहन में ना ऑलरेडी जर्नल होता है। तो मैं उस जर्नल को जहन में रखते हुए बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ कि जब आपने अभी लिखना है तो आपने फलाना फॉन्ट यूज करना है, आपने फलाना फॉन्ट का साइज यूज करना है, और फिर आपने वर्ड की फाइल में लिखना है, आपने इन पैराग्राफ्स में लिखना है, इतने वर्ड्स का होना चाहिए, इतने रेफरेंसेस होने चाहिए। ये मैं सारी बातें क्यों बता रहा होता हूँ बच्चों को? मैं इसलिए बता रहा होता हूँ क्योंकि मेरे जहन में एक जर्नल होता है कि जहां मैंने इसको भेजना है। और मुझे अब तो खैर अब ये हो गया कि अब तो मुझे अक्सर जर्नल्स की गाइडलाइन जुबानी याद हो गई हैं। लेकिन आप लोगों के लिए जो अगर आप लोग स्टार्टर्स हो और आप लोग पेपर लिख रहे हो या लिखना चाह रहे हो आगे जाके, तो प्लीज पहले अपने मेंटर से मिलके कोई जर्नल प्रॉपर चूज कर लो लिखने से पहले। आपको पता है आपका आधे से ज्यादा काम आसान हो जाता है अगर आपके सामने टारगेटेड जर्नल हो। आपको पता हो कि मैंने पेपर लिख के फलाने जर्नल में पब्लिश के लिए भेजना है, तो इसलिए चूजिंग द जर्नल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ राइटिंग। क्योंकि इसका राइटिंग से ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली राइटिंग सारी की सारी चूजिंग द जर्नल पर डिपेंड करती है। देन रिकॉर्ड योर रीडिंग, जो आपने रिजल्ट्स कर लिए हैं उसको रिकॉर्डिंग, उसको राइटिंग होनी चाहिए प्रॉपर। उसके टेबल्स पहले से बने हों, ग्राफ्स ड्रॉ हों। ये टेबल और ग्राफ रिजल्ट्स के होते हैं। फिर कीप फाइल टू रिकॉर्ड समरीज ऑफ रिजल्ट एंड एनी ऑब्जर्वेशन हाउएवर इनसिग्निफिकेंट। बेटे जब रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट सब कुछ नोट करना होता है। यू हैव टू डेट द फाइल्स आल्सो कि आपने किस दिन कौन सा रिजल्ट लिया था। रिवाइज योर रीडिंग्स, यू मे नीड टू रिपीट एन एक्सपेरिमेंट व्हाइल यू स्टिल हैव द मटेरियल्स। राइट आइडियाज व्हेनेवर दे कम टू यू। मैंने यूजुअली बहुत अच्छे रिसर्चर्स को ये काम करते देखा है, दे ऑलवेज कीप अ डायरी विद देमसेल्व्स। वो कुछ ना कुछ ऐसा रिटर्न मटेरियल साथ रखते हैं जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान जो भी उनको इंपॉर्टेंट लगे, कोई आइडिया क्लिक करे, उसको लिख लेते हैं। इन सब का काम ना राइटिंग ऑफ द पेपर में बहुत हेल्प करता है। जब आपके पास ऐसे रिजल्ट सारे रिकॉर्ड में हों, आपके पास टेबल्स बने हुए हैं, आजकल हम उसको वर्ड की फाइल में टेबल्स बना लेते हैं, ग्राफ भी बना लेते हैं, तो वो सारा आपका रिटर्न रिकॉर्ड पहले से सेव होना चाहिए। अगर आपने अभी तक रिजल्ट्स ले तो लिए हैं लेकिन उसको लिखा नहीं है ना, तो पेपर लिखना शुरू मत करें, पहले अपने रिजल्ट सारे लिख लें। तो इंपॉर्टेंट इसमें स्लाइड में इंपॉर्टेंट बात क्या हमने जानी है आज, कि एक तो जर्नल चूज करना है, उसके बाद अपने रिजल्ट सारे लिख लेने हैं, और एनी आइडियाज ड्यूरिंग द रिसर्च कंडक्शन जो आपको है वो लिख लें, देन कम टू योर राइटिंग ऑफ पेपर। सो अब जर्नल चूज करने में दिस अ फनी थिंग, आई जस्ट सॉर्टेड इट आउट कि इफ समवन इज फाइंडिंग कि देयर इज ये पॉसिबल इसकी जर्नल है, तो अगला कहता है नहीं ये वो जर्नल है जो हमारा आर्टिकल रिजेक्ट कर चुके हैं। सो अगर आप प्रॉपर एक ले चुके हो, स्टार्ट में गाइडेंस लेके चल रहे हो, तो इंशाल्लाह आपकी जर्नल की लिस्ट वो नहीं लंबी होगी जो रिजेक्ट करेंगे, आपकी जर्नल की पॉसिबल की लिस्ट इंशाल्लाह बड़ी होगी। सो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग, ये कुछ हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग्स आपकी पूरी होनी चाहिए जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं अपने रिजल्ट्स के बाद। सबसे पहले टाइटल मैटर करता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट है, पहले मैं राइटिंग्स बोल देता हूं, देन इंट्रोडक्शन। मटेरियल्स और मेथड्स सेपरेट भी हो सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसका डिफरेंस बता दूंगा। देन रिजल्ट्स, देन कम्स अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, फाइनली सम समरी। अच्छा, समरी की ना हेडिंग मैंने आपको अलग लिख तो दी है, लेकिन समरी अलग से होती नहीं है। समरी हमेशा डिस्कशन का लास्ट पैराग्राफ होती है। देन एक्नॉलेजमेंट एंड फाइनली रेफरेंसेस। टाइटल में क्या होना चाहिए? इट शुड डिस्क्राइब कंसाइजली द कोर कंटेंट्स ऑफ द पेपर। मैं अभी इंडिविजुअली इसको डिस्कस करता हूं। एब्स्ट्रैक्ट एक मिनी पेपर होता है, एब्स्ट्रैक्ट को मिनी पेपर भी कहते हैं, कि आपने जितनी बड़ी बड़ी फाइंडिंग अपनी लिखी है उसको जरा 250 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखना है और वो स्टार्ट में लिख देना है। एब्स्ट्रैक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको भी डिस्कस करते हैं। देन इंट्रोडक्शन मटेरियल, मैं इसको इंडिविजुअली आगे सबको लेता हूं। So the title, the first important part of when you are writing it. A good title is defined as the fewest possible words that adequately describe the contents of the paper. बहुत लंबा टाइटल, बहुत छोटा टाइटल, ये मैटर नहीं करता है। जितना भी हो आपने कोशिश करनी है कि बस फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, लेकिन इतने वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए कि आपके आर्टिकल का जो आप काम कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे को अच्छी तरह डिस्क्राइब कर दें। बाय द वे, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आपने स्टार्ट में रिसर्च क्वेश्चन चूज किया था ना, जब रिसर्च करने लगे थे, रिसर्च क्वेश्चन चूज किया था, आपके रिसर्च क्वेश्चन में ही ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो आपके टाइटल बनाने में हेल्प करें। अगर किसी ने रिसर्च क्वेश्चन अच्छा बनाया हुआ है ना, तो टाइटल बनाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर रिसर्च क्वेश्चन स्टार्ट में अच्छा नहीं बनाया हुआ कि आप रिसर्च क्यों कर, वो क्या चीज है जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं, अगर वो अच्छा नहीं बना, तो फिर टाइटल लिखना मुश्किल हो जाता है। Title is extremely important and must be chosen with great care as it will be read by thousands, whereas only few will read the entire paper. ये तो बेटे होता ही है। टाइटल आप भी देखो, आप में से जो बच्चे लिटरेचर व्यू को सर्च करते हैं, तो आप सभी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि टाइटल तो हम सारे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन हम आर्टिकल कोई कोई इसमें रीड करते हैं। टाइटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत कैची होना चाहिए। मैं कैची का वर्ड यूज करूंगा कि कोई आपका टाइटल पढ़े ना, तो टाइटल पढ़ते ही उसको आना चाहिए कि ओके यार, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, कि इसको देखना पड़ेगा, ये मजे की चीज है।
तो इसीलिए ये देखना आपने कि टाइटल बहुत कैची होना चाहिए. इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग ऑफ द पेपर डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द टाइटल एंड इम्प्रॉपरली टाइटल्ड पेपर विल गेट लॉस्ट एंड विल नेवर बी रेड. सोचो यार कितना अच्छा काम किया है, कितने महीने लगा के किया, लेकिन टाइटल ऐसा दे दिया है कि अगला पेपर पढ़ा है तो उसने आपके पेपर में इंटरेस्ट ही शो नहीं की है और वो उधर से ही बाईपास करके निकल गया. तो इसीलिए देख लो कि टाइटल कितना मैटर करता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है. So, okay, so let me move to the next slide. Okay, is it visible? Next slide आ रही है बेटे आपको नजर? Yes, sir. Okay, okay, thank you. तो मेरे यहाँ पे ब्लॉक हो गई थी तो इसलिए मैं कह रहा था. Okay, so title should neither be too short nor too long as to be meaningless. Waste words should not be used. Waste words होता है studies on, investigations on, and a. इसके यूजेस जरा कम करें टाइटल के अंदर. सिंटेक्स कहते हैं वर्ड ऑर्डर को. मस्ट बी वेरी केयरफुली कंसीडर्ड कि आपने पहले कौन से वर्ड लगाए हैं, बाद में कौन से लगाए हैं. इट शुड कंटेन द कीवर्ड्स दैट रिफ्लेक्ट द कंटेंट ऑफ पेपर. आपको पता है आप टाइटल में वो वर्ड लिखते हैं कि जब कोई गूगल स्कॉलर पे लिख के या पबमेड पे लिख के सर्च करे ना, तो आपके कीवर्ड से ही आपका आर्टिकल मिल जाए. ये कीवर्ड्स आपके टाइटल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. It should be meaningful and not journal. It should be concise, specific, and informative. It should capture the fundamental nature of the experiment and the findings. Title writing भी ना एक अलग ही मतलब एक प्रोसीजर है पूरा कि उस पर एक अलग डिस्कशन बनती है कि वो टाइटल कैसा होना चाहिए, उसकी एग्जांपल के साथ हम उसको डिस्कस करें. बट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम दिस इज द मिनिमम आई कैन टेल यू अबाउट द टाइटल. एग्जाम्पल में आप डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एंटीबायोटिक एक्शन देखा है बैक्टीरिया पे. अब आपका एक आपने पहले बनाया कि एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन बैक्टीरिया. अब ये इतना टाइटल काफी नहीं है, वो एक्शन डिफाइंड होना चाहिए. एंटीबायोटिक जो है वो कौन से यूज किए हैं और बैक्टीरिया कौन सा यूज किया है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टाइटल एग्जांपल नीचे ली है, 2-3 टाइटल लिखे हुए कि एक तो लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ सप्रेशन ऑफ नॉन ट्रांसमिसेबल निमोनिया इन माइस इंड्यूस्ड बाय न्यू कैसल डिजीज वायरस. अब आप देख रहे हो कि अब इसमें पूरा डिटेल से में समझ आ रही है कि आपने कौन सी डिजीज स्टडी की है, आपने कौन से एनिमल में की है और फिर कौन सा वायरस देखा है. फिर इसका एक और टाइटल है, ये जोड़े जेनेटिक स्टडी है कि इवैल्यूएशन ऑफ द मिथाइलेशन स्टेटस ऑफ द प्रमोटर ऑफ प्रोस्टेट एपोप्टोसिस PAR4 जीन एंड इट्स प्रोटीन एक्सप्रेशन इन इजिप्शियन कैंसर पेशेंट. तो आप देख रहे हो अब ऊपर वाला टाइटल थोड़ा सा छोटा है, ये वाला बड़ा है, लेकिन ये मैटर नहीं कर रहा है. मैटर ये कर रहा है कि आपको पढ़ के सारा कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि अच्छा इन्होंने एक्चुअली काम किया क्या है. तो इस तरह से होना चाहिए. अब एक लास्ट में मैंने टाइटल लिखा है इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन लीफ मॉर्फोलॉजी. ये भी एक टाइटल बन सकता है. अब इसमें भी आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही छोटा है, लेकिन हो सकता है किसी ने सिर्फ इतना ही काम किया हुआ है, उसने देखा हुआ है कि लीफ की मॉर्फोलॉजी के ऊपर सनलाइट का इफेक्ट क्या आ रहा है. अब बात समझ रहे हैं कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आपने टाइटल छोटा या बड़ा मैटर नहीं करता, ये आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग मैटर करता है. तो आप अपनी स्टडी को बिल्कुल पूरा प्रिसाइज करके आप उसको लिखें. हाँ, ये भी नहीं कि बहुत लंबा खींच देना है, ये भी नहीं कि बिल्कुल छोटा कर देना है. आप इसमें देखें कि इसमें ए और एन यूज नहीं हुआ, उसको अवॉइड किया हुआ है. दूसरा स्टडी ऑफ, ये टाइटल नहीं होना चाहिए कि स्टडी ऑफ सप्रेशन ऑफ, ऐसे शुरू नहीं होना चाहिए. ये बिल्कुल मैकेनिज्म, इवैल्यूएशन, इफेक्ट, इस तरह के कीवर्ड से शुरू होना चाहिए. So preparing of the title, make a list of most important keyword. पहले आप कीवर्ड लिख लें, टाइटल कैसे प्रिपेयर करना है. Think of a title that contains these words. The title could state the conclusion of the paper as well. The title never contains abbreviation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने never इसलिए पिंक में हाईलाइट किया हुआ है. कभी इसमें एब्रीविएशन बेटे यूज नहीं करना, इसमें पूरे के पूरे आपको वर्ड्स खोल के लिखने पड़ते हैं. और उसके बाद केमिकल फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टी नेम्स और जैर्गन ये इसमें यूज नहीं होने चाहिए. थिंक रीथिंक ऑफ द टाइटल बिफोर सबमिटिंग पेपर. टाइटल तो बेटे जरूर इवेल्युएट करवाओ किसी से. पेपर चलो आपने खुद काम किया है, आप बच्चों ने खुद मिलकर कहीं पे पेपर देखा है, वो ठीक है, लेकिन टाइटल किसी ना मेंटर से या किसी सीनियर से जरूर इवेल्युएट करवाओ. टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. टाइटल आपकी प्रेजेंटेशन है ना, देखो ना, एक हम डेली अपने कपड़े पहनते हैं. अब उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कपड़ों में कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो भी पहने वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी को वो एड्रेस कर रहे हैं. तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है कि आपके अंदर कितना कंटेंट है, आपके अंदर कितने गट्स हैं. सेम इज द थिंग विद टाइटल. बी वेरी केयरफुल ऑफ द ग्रामेटिकल एरर ड्यू टू फॉल्टी वर्ड ऑर्डर. ये आपने जहन में रखना है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. किसी के टाइटल में स्पेलिंग मिस्टेक हो ना, वो आपको भी कभी अपील नहीं करेगी और वो किसी को भी अपील नहीं करेगी. तो अवॉइड द यूज ऑफ वर्ड यूजिंग का वर्ड काइंडली अवॉइड कीजिएगा. ये स्टार्ट में टाइटल में यूज किया जाता था, ये वीक टाइटल्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट. अच्छा, मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये मैं आइडियल बात नहीं कर रहा हूँ. मेरा एक्सपीरियंस इसमें ये है कि एब्स्ट्रैक्ट ना आपको पता तो होना चाहिए कैसे लिखना है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आपको सबसे लास्ट में लिखना है.
जब आप सारा रिसर्च पेपर लिख लो ना, जितने पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे एमरैड में लिख लो, तो उसके बाद आपने सबसे एंड पे आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना। उसकी वजह ये है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में जितनी हेडिंग्स आती हैं वो सारी आपके रिसर्च पेपर की हेडिंग्स होती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट कैन बी डिफाइंड समरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस क्योंकि रिटन क्लियरली और सिंपली होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी ऑफ ईच ऑफ द मेन सेक्शन एमरेड के ना। तो जब आपने एमरेड अभी लिखा ही नहीं आगे, आपने इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट, डिस्कशन अभी लिखा ही नहीं है, तो आप कैसे आओगे, आप कैसे फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे? तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट काइंडली आपने सबसे लास्ट में लिखना है। तो उसमें होना क्या चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट की ये तीन चार हेडिंग्स होती हैं। स्टेट द प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये पहले हेडिंग होती है, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। फिर मेथड्स, मटेरियल, मेथड दूसरी हेडिंग होती है। तीसरी हेडिंग इसकी रिजल्ट्स होती है। एंड फाइनली कंक्लूजन। डिस्कशन का पार्ट आप इसमें नहीं लिखते हो, डिस्कशन कभी आप एब्स्ट्रैक्ट में ऐड नहीं करते हो, सीधा कंक्लूजन पे आते हो। सो इट इज ईजियर टू राइट द एब्स्ट्रैक्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पेपर। बॉटम लाइन जो मैंने लिखी हुई है, हमेशा ईजी हो जाता है काम करना। क्राइटेरिया ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट किया, अच्छा ये ना मैंने यूनिवर्सली मोस्टली जर्नल का ना ये क्राइटेरिया, लेकिन अगर आपने जर्नल पहले चूज कर लिया ना तो हर जर्नल ने एब्स्ट्रैक्ट का अपना क्राइटेरिया दिया होता है। ये मैं वो क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया जो मोस्ट ऑफ द जर्नल इन नेशनल इंटरनेशनल एक्सेप्ट करते हैं। एक तो आपने जहन में रख लेना, जब एब्स्ट्रैक्ट आपने लिखना है ना सबसे एंड पे, उसको 250 वर्ड से ऊपर नहीं जाने देना। अगर वो 250 वर्ड से ऊपर चला गया तो उसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा पेपर ना रिटर्न हो जाते हैं जब आप सबमिट करवाते हैं पब्लिकेशन के लिए। वो कहते हैं नहीं जी इसको 250 वर्ड से कम करें, तो आपने पहले ही सोच लेना। इट शुड बी रिटन इन वन पैराग्राफ, कोशिश करनी है ऐसे ही लिखें। इट शुड बी रिटन इन द पास्ट टेंस, ये बहुत जरूरी बात है। आपने इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना, क्योंकि आप काम कर चुके हैं, तो आपने इसमें सारा कुछ पास्ट टेंस के अंदर लिखना होता है। इसको ना दोबारा जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिख लेना, इसको दोबारा रिविजिट करें। और रिविजिट क्यों करना होता है, इसलिए करना होता है देखने के लिए कहीं आपने प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस तो यूज नहीं किया। लॉन्ग वर्ड शुड बी फॉलोड बाय, हाँ एब्स्ट्रैक्ट में एक हमें ना एक लिबर्टी मिल जाती है कि टाइटल में जो नहीं थी, टाइटल में आप एब्रीविएशन यूज नहीं कर सकते थे, यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक रूल है। एब्स्ट्रैक्ट में आपने फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को आप यूएचएस लिखना चाह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब एक स्टडी यूएचएस में हुई है, मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूं। तो आपने पहले एक दफा आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कंप्लीट लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट में, उसकी ब्रैकेट में आप यूएचएस यूज कर देंगे, और उसके बाद से आप एब्स्ट्रैक्ट में कंटिन्यूअसली यूएचएस यूज कर सकते हैं। फिर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। इट शुड नॉट साइट एनी रेफरेंसेज, एब्स्ट्रैक्ट में रेफरेंसेज नहीं होने चाहिए। इट शुड नेवर गिव एनी इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन दैट इज नॉट स्टेटेड इन द पेपर। एब्स्ट्रैक्ट में कोई चीज ऐसी मत शामिल करें जो आपने पेपर में कहीं दी नहीं हुई है। मस्ट बी एक्यूरेट विद रिस्पेक्ट टू फिगर्स कोटेड इन द मेन टेक्स्ट। तो जाहिर है बेटे ये सारी जो आखिरी दो पॉइंट है ये तभी पूरे होंगे जब आपने पूरा पेपर पहले लिख लिया हुआ है। उसको दोबारा जब यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई ऐसी चीज होगी नहीं कि जो आपने मेंशन ना की। तो पहले पेपर सारा लिख लें, एंड पे एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आए। फिर आपका आता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन का अच्छा मैं आपको बड़ा सिंपल अगर मैं बोलूँ ना, इंग्लिश में उर्दू में कहूँ, इंट्रोडक्शन में आपने आंसर करना होता है वाई का, कि आपने अपनी रिसर्च क्यों की है, आपने क्यों का आंसर करना होता है इंट्रोडक्शन में। सो द इंट्रोडक्शन शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वाज आई स्टडिंग, यहां से आप शुरू करते हैं। पहले आप पहली 2-3 लाइन 4 लाइन आप इसकी बताते हैं, व्हाई वाज दिस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब व्हाई का आगे। फिर व्हाट डिड आई नो अबाउट दिस टॉपिक बिफोर आई डिड द स्टडीज। अरे आप जब अपना बेटा आप रिसर्च करते हैं तो उससे पहले आप लिटरेचर रिव्यू पूरा स्टडी करते हैं। देन व्हाट मॉडल वाज आई टेस्टिंग, कौन सा मॉडल मैं देख रहा था, इफ यू आर टेस्टिंग सम मॉडल, एंड व्हाट अप्रोच डिड आई टेक इन दिस स्टडी। तो इसमें आप इसका आंसर करते हैं। इसके ना एक मॉडल होता है जिसको इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल कहते हैं। दिस इज इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल। मैं इसका रेफरेंस भी आपसे शेयर करूंगा, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैंने पढ़ा इससे रिलेटेड, पहले भी पढ़ रखा था लेकिन बहुत अरसे बाद दोबारा उसका पढ़ना हुआ। मैं आपसे Excuse आर्टिकल me, भी sir. शेयर इन अगेन from exactly where we left. Please let me know, is it visible? Yes, sir. Okay. So this is where we left in the previous discussion. We were on to the topic of introduction, that how to write the introduction part. मैंने आपको अभी ये बताया था कि हमने why का आंसर इसमें करना होता है। ये इंट्रोडक्शन लिखने का ना एक फॉर्मल तरीका है जिसको इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल कहते हैं। You begin with the broad base and you end at the tip of the pyramid. आप 1 2 3 4 5 भी देख रहे हैं। तो 1, you should care about this research. This research is so important. So what? तो आपको इसमें पूरा ये आंसर करना होता है कि आप इसकी क्यों केयर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नंबर 2 में व्हाट्स ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक, इसके बारे में पहले क्या पता था। सो व्हाट्स नॉट नोन अबाउट द टॉपिक, फिर आप आगे लिखते हो कि जो बातें इसको नहीं पता, जिसको बेसिकली रिसर्च गैप बोलते हैं, जिसको देखते हुए आपने अपने स्टार्ट में टॉपिक चूज किया था।
नंबर फिर आगे इसमें लिखते हो, इसमें बैकग्राउंड आ रहा है साथ ना, वाई ऑलरेडी नोन क्या है, फिर अभी नोन क्या नहीं है। नंबर 4 पे वाई इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस न्यू इन्फॉर्मेशन, ये क्यों, मतलब किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो आपका पेपर पढ़ के नई इन्फॉर्मेशन है, उसका फायदा क्या होने वाला है। और व्हेन द जो टिप है ना इसकी, वो एंड होती है एम पे, कि ओके व्हाट आर यू एग्जैक्टली एमिंग एट, ये आखिरी 2-3 लाइंस होती है। सो ये ब्रीफ है, ये इसको जहन में रखिएगा। इनवर्स पिरामिड मॉडल होता है, इस तरह करके आपने इस रिसर्च को लिखना होता है इंट्रोडक्शन के पार्ट को। So suggested rules for a good introduction, what these would be: it should present the nature and scope of the problem investigated, review the pertinent literature, state the method of investigation, state the principal results of investigation, and state the principal conclusion suggested by the results. ये जो previous है उसकी बात हो रही है। So journal sorry, अच्छा वैसे ना मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं जब रिसर्च पेपर लिखता हूँ ना, तो मैं इंट्रोडक्शन भी सबसे एंड पे लिखता हूँ, मतलब एब्स्ट्रैक्ट से पहले और बाकी पेपर के बाद में। मेरा मेथड ये होता है कि मैं जब पहले रिजल्ट्स बन जाते हैं, जो मैंने लर्न किया है ओवर द कोर्स ऑफ सम इयर्स, के फर्स्ट और रिजल्ट्स तो बन गए हमारे पास, मैं रिजल्ट्स बनाने के फौरन, रिजल्ट्स जब मेरे बन रहे होते हैं उसके साथ साथ मैं अपनी मेथडोलॉजी लिखता हूँ, मेथड्स और मटेरियल की जो हेडिंग आगे आ रही है मैं वो लिखता हूँ। रिजल्ट्स जब बन जाते हैं तो उसके बाद उसकी डिस्कशन लिखता हूँ, फिर डिस्कशन को देखते हुए मैं इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, और फिर सारे पेपर को फाइनल एनालाइज करते हुए मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखता हूँ। सो ये कोई रूल और मेथड नहीं है कि आपने उसको ए से बी तक ऐसे ही लेके चलना है जैसे लिखा होता है, या आपकी मर्जी होती है। मैं इसको ज्यादा इजी फील करता हूँ, मैं उसकी रीजनिंग भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। So general rules are: use the present tense when referring to the work that has already been published। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है इंट्रोडक्शन लिखते हुए। जो पेपर पब्लिश हो चुका है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखें, लेकिन जब आप अपनी स्टडी की बात करें तो पास्ट टेंस में लिखें। ये ना मिक्सिंग हो जाती है लिखते हुए कई रिसर्चर से, वो अपनी स्टडी को प्रेजेंट में ले जाते हैं क्योंकि जाहिर उन्होंने अभी की होती है, हैज और हैव लगाया होता है, लेकिन आप उसको पास्ट में लिखें, हैड का यूज करें या वॉज यूज करें, और फिर प्रेजेंट टेंस जो है वो आप यूज करें जो स्टडी पब्लिश हो चुकी है उनके लिए। जैसे a study in Egypt is published which shows that their whatever the population is having this, तो उसमें आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। यूज एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को जरा अवॉइड करें, एक्टिव वॉइस उसमें यूज करें। अवॉइड लेंथी और अनकंफ्यूज रिव्यूज ऑफ प्रीवियस रिसर्च, बहुत लंबी चौड़ी ना प्रीवियस रिसर्च से लिखें, 1-2 लाइंस इनफ होती हैं। फिर साइट पीयर रिव्यूड साइंटिफिक लिटरेचर, स्कॉलरली रिव्यूज होने चाहिए। आप जनरल रेफरेंस वर्क ना लिखें, उसमें टेक्स्ट बुक से यूजली टेक्स्ट बुक अवॉइड करनी चाहिए इंट्रोडक्शन लिखते हुए, कोई प्रॉपर पब्लिश डाटा हो उसका आपको रेफरेंस देना चाहिए। डिफाइन एनी स्पेशलाइज्ड टर्म्स और एब्रीविएशन अगर आपने कोई यूज की है तो उसको लहजा से डिफाइन कर दें। ओके, नाउ वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट हेडिंग। वो आपने एमरेट का जरा ज़हन में रखना है। तो हमने ए और आई कर लिया, नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द एम पार्ट विच इज मटेरियल एंड मेथड सेक्शन। तो मटेरियल मेथड में होता क्या, इसमें जनरल इंफॉर्मेशन क्या मिल रही होती है। इट प्रोवाइड फुल डिटेल सो दैट द एक्सपेरिमेंट्स आर रिप्रोड्यूसेबल। अगर किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट रिप्रोड्यूसेबल करना है ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ही होता है मटेरियल मेथड, उसको जाके देखना होता है। मैं अपने जो बच्चे मेरे साथ रिसर्च करते हैं, जो मेरे साथ ट्रेनीज हैं, मैं उनको ये कहता हूँ, ये सजेस्ट करता हूँ हमेशा, और मैंने खुद भी अपने मेंटर से यही सीखा है कि जब भी आप अपना मटेरियल मेथड लिखें तो वो इतना क्लियरली लिखें कि कोई भी आपके पेपर्स को, आपके स्टडी को अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो उसको आराम से कर दे। So if the peer review has doubts that the experiment could be repeated, manuscript will be rejected। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बड़ा क्लियर होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है जो पेपर रिजेक्ट होने की मोस्ट कॉमन कॉज होती है ना, मटेरियल मेथड ही होती है। बाद में डिस्कशन आता है, रिजेक्ट होने में मटेरियल मेथड से रिजेक्शन ज्यादा होती है। ऑर्गेनाइज द मेथड अंदर सब हेडिंग, कोशिश करें उसको सब हेडिंग में रखें, लेकिन कुछ ऐसे, ये भी जर्नल टू जर्नल वेरी करती है बात। मोस्टली जर्नल कहते हैं कि सब हेडिंग रखेंगे, लेकिन कुछ जर्नल ये भी कहते हैं कि आप ना इसमें सब हेडिंग्स मत रखें, मटेरियल मेथड को पैराग्राफ में लिखें। सो विद रिलेटेड मेथड डिस्क्राइब टुगेदर, जैसे इसमें सब्जेक्ट, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, आपकी स्टडी सेटिंग, आपका स्टडी ड्यूरेशन, आपका सैंपल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक, इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ये इसकी सब हेडिंग्स होती हैं। ये सब हेडिंग्स आप ना भी दें ना, फिर भी आप ये हेडिंग्स को जहन में रखते हुए पैराग्राफ में आप इसी तरह लिख सकते हैं। मैं रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। आप इसमें सब हेडिंग्स जो हैं वो यहाँ लिखी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ उसमें क्या होती हैं। कि आप उसमें अपना स्टडी डिजाइन सबसे पहली सब हेडिंग होती है, फिर स्टडी सेटिंग होती है, आपने कहाँ पे वो स्टडी की, फिर स्टडी ड्यूरेशन, आपको कितना टाइम लगा, कब आपने शुरू की थी, कब खत्म की। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना होता है कि आपका सैंपल साइज क्या था, कितना था और कैसे कैलकुलेट किया। कोशिश करें इसमें फॉर्मूला जरूर बताएं। अगेन जब भी मैं रिसर्च करता हूं तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं उसमें सैंपल साइज फार्मूला जरूर मेंशन करूं, प्रॉपर सैंपल साइज कैलकुलेट हमने किया होता है पहले से। उसके बाद फिर आप लिखते हैं आप इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, वो आपने लिखना होता है कि आपने किन
अपने स्टडी सब्जेक्ट्स कौन से इंक्लूड किए, कौन से एक्सक्लूड किए, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो आपने उसमें थोड़ा सा डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर लिखना होता है कि आपने अपना डाटा कैसे कलेक्ट किया. दिस इज हाउ योर मटेरियल मेथड सेक्शन कंक्लूड्स. डू नॉट मेक सम ऑफ द रिजल्ट इन दिस सेक्शन. रिजल्ट्स आप इसमें मत लेकर आए अभी. आप इसमें सिर्फ तरीका बताएं कि आपने काम कैसे किया है. और राइट इन द पास्ट टेंस. ये चल रहा है लगातार, इसको भी पास्ट टेंस में लिखना होगा कि आप उसको ऐसे लिखते हैं कि दिस क्रॉस सेक्शनल स्टडी वाज कंडक्टेड एट द फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल फ्रॉम 1 May 2023 टू 31 May 2023. इस तरह पे एक लाइन बनाते हैं. अच्छा, इसमें मटेरियल्स का थोड़ा सा मैं कर दूं इसमें कि मटेरियल्स का कभी कभी आपको अलहदा भी लिखना पड़ता है. ये अक्सर ना एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में मटेरियल आपको अलहदा से लिखना पड़ता है. हमारी एक्सपेरिमेंटल होती नहीं है तो मटेरियल मेथड इकट्ठी हेडिंग देते हैं. लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं तो उसमें मस्ट आइडेंटिफाई एक्यूरेटली एक्सपेरिमेंटल एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब आपको लिखना होता है. फिर सोर्स ऑफ सब्जेक्ट, स्टडीड, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ईच ग्रुप यूज, देयर जेंडर, एज, वेट सब क्लियर होना चाहिए. If human subject are used, the criteria for selection should be described and consent should be given. ये भी आप लाइन जरूर मेंशन करते हैं, बल्कि बहुत बेहतर हो अगर आप कॉन्सेंट फॉर्म भी साथ जमा करवा सके जनरल में तो आप जरूर जमा करवा दें. वो आपके पेपर को हमेशा पुश करता है. फॉर केमिकल यूज वो आपने सारा डाटा मेथड में लिखना होता है. कोई केमिकल यूज हुआ, ये अक्सर पीएचडीज और एमफिल की जो रिसर्चेज होती हैं उसमें केमिकल का काफी लंबी चौड़ी डिटेल आती है मटेरियल के अंदर. लेकिन हम जो ये अंडरग्रेड लेवल पे जो लिखते हैं पेपर उसमें यूजली केमिकल्स हम नहीं यूज करते तो इतनी डिटेल नहीं होती. ऑलवेज अवॉइड द यूज ऑफ ट्रेड नेम ऑफ केमिकल. ये उनके लिए है जब अगर अपना केमिकल्स के नेम यूज करने हैं तो ट्रेड नेम यूज ना करें. जैसे कोई ड्रग्स भी यूज किए तो कोशिश करें उसका जो एक्चुअल जो नेम है, जेनेरिक नेम है, वो प्रेफर करें. अब जो उसका एक्चुअल नेम है, जैसे पेनाडोल है, ये एक सिंपल नेम है, लेकिन पैरासिटामोल है वो इसका जेनेरिक नेम है, तो वो यूज करना चाहिए. फिर मेथड वही अगेन सेम वही कंटिन्यू हो रहा है कि ऑल डिटेल मस्ट बी प्रोवाइडेड है. मैं आपको सारा पहले बता चुका हूँ, इसको मैं दोबारा से डिस्क्राइब नहीं करने लगा, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ. नाउ वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू राइट द रिजल्ट्स. नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल. रिजल्ट्स आप पहले लिख तो चुके हैं अपने पास. आपने जब रिजल्ट स्टार्ट में बनाए थे, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि पेपर शुरू करने से पहले रिजल्ट आपके पास लिखे होने चाहिए. लेकिन अब ये टाइम आ रहा है कि आपने अपने रिजल्ट प्रेजेंट कैसे करने हैं. तो रिजल्ट सेक्शन इज रिटन इन द पास्ट टेंस. इट इज द कोर और हार्ट ऑफ द पेपर. यूजुअली जब कोई भी रिसर्चर या आप भी पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता है कि आप मटेरियल मेथड और रिजल्ट्स पे जंप करते हैं. इसने निकाला क्या है. So it needs to be clearly and simply stated since it constitutes the new knowledge contributed to the word. The purpose of this section is to summarize and illustrate the finding in an orderly and logical sequence without interpretation. The text should guide the reader through the finding, stresses the major point. Do not describe the method that have already been described in material and method section or that have been inadvertently omitted. याद रखिएगा बेटे, आप मेथड्स रिजल्ट्स में नहीं बताते. आप दोबारा ये नहीं बताना शुरू करते रिजल्ट में आपने एक काम कैसे किया है. यू जस्ट राइट इट डाउन कि आपका क्या निकल रहा है. इसमें जो सेकंड लास्ट पॉइंट है ना, जो लिखा हुआ है द टेक्स्ट शुड गाइड द रीडर. आपने सब कुछ नहीं लिख देना होता रिजल्ट्स का. आपने वो पॉइंट्स लिखने होते हैं जो आपको लग रहा है कि आपके टाइटल के अकॉर्डिंग बहुत मेजर स्ट्रेस कर रहे हैं. आपने उसको एड्रेस करना होता है और फिर अपने अपने डाटा को प्रेजेंट करना होता है. ये 3 तरीके होते हैं बेटे डाटा को प्रेजेंट करने के. या तो आप उसको टेक्स्ट में लिख देते हैं, या आप उसको टेबुलर फॉर्म में जो बहुत कॉमन यूज होती है, या फिगर्स बना देते हैं. एक बात आपने याद रखनी है, जो चीज आपने टेक्स्ट में लिखी है वो टेबल और फिगर में नहीं आनी चाहिए. जो चीज टेबल में है वो टेक्स्ट में और फिगर में नहीं आनी चाहिए. जो चीज फिगर में है वो टेबल और टेक्स्ट में. रेपिटेशन ऑफ रिजल्ट्स नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने टेबल बनाया, वहां पे आपने जेंडर मेंशन किया, जी हमारी स्टडी में मेल 55% थे, फीमेल 45% थी. और फिर आपने आगे एक पाई चार्ट बनाया है और पाई में दोबारा आपने वही दिखाया हुआ है कि मेल 55 है और फीमेल 45 है. ये रेपिटेशन हो जाती है, ये आप अनवांटेड रेपिटेशन कर रहे हैं. ये अगेन आपका जो डाटा होता है, जब आपका पेपर कोई पढ़ रहा होता है तो आपके पेपर को उस वक्त ये फिर अनइंटरेस्टेड कर देता है. यार ये तो उसने पहले भी लिखा था, ये दोबारा भी लिखती है. ठीक है, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं बेटे, ये आप लोगों के नॉलेज में शायद हो पहले से, शायद ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप टेबल या फिगर बनाते हैं तो मोस्टली जर्नल्स ये आपको एड्रेस करते हैं कि आपने मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 टेबल और फिगर दोनों, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए. बल्कि कुछ जर्नल तो इसमें इतने लिमिटेड है, वो कहते हैं टेबल और फिगर मिला के मैक्सिमम 3 या 4 होने चाहिए. बेटा ऐसा उसकी रीजनिंग ये है क्योंकि आपको पता है जब पेपर आपका पब्लिश होता है तो उसके ठीक है पब्लिशिंग चार्जेस तो वो लेते हैं, लेकिन वो भी अपने पेजेस को मिनिमम करते हैं. वो कोशिश करते हैं कि आपका जो रिसर्च पेपर है वो मिनिमम पॉसिबल पेजेस में आना चाहिए. बहुत कम जर्नल्स मैंने ऐसे देखे हैं पाकिस्तान में कि जहां पे वो पेपर की वो कोई लिमिटेशन नहीं है, वो आपका सारे का सारा डाटा पब्लिश करवा देते हैं. वो बहुत कम है.
उसमें एक जनरल और मेडिकल डेंटल यहाँ पे है फैसलाबाद में, JUMDC है, जनरल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल डेंटल कॉलेज फैसलाबाद, तो उनका जर्नल है, उसको मैंने देखा है। वो आर्टिकल कम पब्लिश करते हैं लेकिन वो सारे का सारा डाटा लगाते हैं, लेकिन बाकी मोस्टली जर्नल में ये हमेशा बहुत लिमिटेशन होती है। तो आपने याद रखना, इसीलिए ना मैं आपको बात पता क्यों बता रहा हूँ, जब स्टार्ट में आप टेबल्स बनाते हैं ना, तो ये बात उसी वक्त बनाते हुए जहन में रखें कि आपने टेबल इस तरीके से बनाने हैं कि 3 से 4 से मैक्सिमम 5 टेबल हो, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक टेबल में डाटा कितना होगा वो कोई लिमिटेशन नहीं होती है, वो टेबल लंबा चौड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए ये एक आसानी भी है कि आप इस बात में परेशान ना होइएगा कि इसका मतलब हमें कुछ रिजल्ट काटने पड़ेंगे टेबल बनाने के लिए, फिगर नहीं, आपको रिमूव कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको बस उसको क्या करना पड़ेगा, टेबल एक लंबा कर रहे हैं लेकिन एक में ही लें। और दूसरा, ये टेबल, ये रिजल्ट लिखते हुए ये पता है बातें जानना क्यों जरूरी है, ये आप काम पहले से कर सकते हैं। जब आप रिजल्ट अपने पेपर लिखने से भी पहले रिजल्ट लिख रहे होते हैं ना, तो आप उस वक्त ऐसा अपना माइंड ऐसा बना लो, ये आपको ना 2-3 पेपर्स में मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जब आगे चलोगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी। वो मुश्किल स्टार्ट में क्या होगी, आपको ये समझ नहीं आएगा मैंने टेक्स्ट में क्या लिखना है टेबल में, और सॉरी मैंने इसमें सिंपल टेक्स्ट में रिजल्ट्स में क्या लिखना है, मैंने टेबल में क्या लिखना है, मैंने फिगर में क्या देना है। ये आप पास पेपर कोई पब्लिश पेपर देखो, उसमें देखो उन्होंने क्या मेथड यूज किया, किस तरह से चलते हैं वो, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि ओके, टेक्स्ट में मैंने ये वाला नॉलेज देना है, टेबल में मैंने ये वाला देना है, फिगर में मैंने ये वाला देना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस से ये चीज आ जाएगी। So table are appropriate for large or complicated data, ये generally देखा गया है। Figures are appropriate for data set that exhibit trends, pattern और relationship, figures उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं। फिर वो खैर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो सेम इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं होनी चाहिए। Then comes a difficult part of paper writing. The most difficult part of paper writing is to write the discussion part. It is the hardest section. बहुत इसके लिए लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। इट्स प्राइमरी पर्पज इज टू शो द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जर्व्ड फैक्ट। डिस्कशन बेटे बिल्कुल एक इंग्लिश का वर्ड है, मैं अगर आपको समझाऊं ना, तो जैसे मैं आपको एक टॉपिक दूं, जैसे आज मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं अपने टॉपिक पे, मुझे आपने टॉपिक दिया कि सर आपने ना, आप बच्चों को काइंडली इस पे बताएं कि मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं। आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस विद यू पीपल, लेकिन डिस्कस करते हुए ना मैं आपको लगातार जो है मैं आपको अपनी बात भी बता रहा हूं। जो अब मैं आपने देखा होगा मेरे इसी प्रेजेंटेशन के अंदर कई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मैंने कई पास पेपर से ली हुई है। मैंने आपको मैंने एक पिरामिड दिखाया है, एक पिरामिड आगे और आ रहा है, वो भी आपको दिखाता हूं, वो मैंने किसी पेपर से लिया हुआ है। तो आप देख रहे हो डिस्कशन में क्या हो रहा है कि पास्ट लिटरेचर व्यू भी है, लेकिन आप जो कुछ बताना चाह रहे हैं वो भी इंक्लूड होता है। मैं आपको बताता हूँ डिस्कशन कैसे लिखते हैं। इट्स प्राइमरी पर्पज टू शो द रिलेशनशिप एंड इट शुड एंड विद अ शॉर्ट समरी। मैंने आपको बताया था ना कि जो कंक्लूजन या समरी होती है उसकी यूजुअली अलग से हेडिंग नहीं होती, आप दे भी सकते हैं, लेकिन यूजुअली इट इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द डिस्कशन। अच्छा, डिस्कशन ऐसे है, डिस्कशन एक स्ट्रेट पिरामिड की तरह होती है। अब इस पिरामिड को आपने ऊपर से नीचे देखना है, नीचे से ऊपर नहीं देखना। आप इसको ऊपर से शुरू करते हैं, एक टिप से शुरू करते हैं और ब्रॉड बेस पे इसको एंड करते हैं। टिप कैसे होती है कि मिनी साइनॉप्सिस, पहले आपने छोटा सा हल्का सा आपने एक आधा पैराग्राफ लिखना होता है अपने जर्नल के, अपने पेपर के बारे में। फिर आपने रीस्टेट मेन फाइंडिंग्स, अपनी मेन फाइंडिंग लिखनी होती है, लेकिन आपने कोशिश करनी है, ये एक्सपर्टीज से आता है आहिस्ता आहिस्ता, कि आपने फाइंडिंग का मतलब है रिजल्ट्स तो लिखने हैं, लेकिन उनको इस तरीके से बताना है कि पढ़ने वाले को ये ना लगे कि दोबारा रिजल्ट्स लिखने शुरू कर दिए। आपको थोड़ी इंग्लिश में मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ योर रिजल्ट्स। फिर आप रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं प्रीवियस लिटरेचर रिव्यू के साथ। फिर आप फाइनली क्या करते हैं, आप पाथवेज, आप इसके बारे में बताते हैं। ये खैर पेपर टू पेपर पाथवेज का पार्ट वेरी करता है। पाथवेज का मतलब इसमें ये होता है कि आपने रिजल्ट्स के लिए कौन सा पाथ लिया है, फलाने ने कौन सा तरीका इख्तियार किया, आप उस पर डिस्कस करते हैं। फिर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, कि आपके मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपने एक डाटा, आपने स्टडी की, स्टडी में आपका निकला कि जी 45% जो आपके बच्चे हैं ना डे स्कॉलर्स, वो बहुत ही अटेंटिवली लेक्चर अटेंड करते हैं। फॉर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कभी मैंने बनाई है खुद से। तो आपने उसकी रीजन देनी होती है, स्ट्रेंथ लिमिटेशन की, क्या स्ट्रेंथ क्या है इस बात की कि अच्छा 45% क्यों कर रहे हैं, आपके ख्याल में इसकी क्या रीजन है, ये आपने बताना होता है उसमें। और फिर उसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब क्या अच्छा ओके 45% क्या ज्यादा भी कर सकते थे या इससे कम होने चाहिए थे, वो आपने मेंशन करना होता है। फिर इम्पैक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, के ओके आपने ये कर लिया, फिर आपने एक पैराग्राफ में ये लिखना होता है कि ओके आप इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, कि देखें जी हमने ये कुछ निकाला है और हमारी डिस्कशन में ये उसकी रीजनिंग है, तो देखें ये आने वाले दिनों में आने वाले लोगों के लिए ये कितना इम्पैक्ट होने वाला है। और फाइनली लास्ट एक आपने लाइन जरूर लिखनी होती है कि सजेशन फॉर फ्यूचर वर्क, ये जरूर लिखना होता है। आपको पता है जब आप अपनी रिसर्च करने के लिए भी कोई डिस्कशन, कोई लिटरेचर आर्टिकल पढ़ते हैं ना, तो आर्टिकल पढ़ने के वक्त आप डिस्कशन का लास्ट पैराग्राफ जरूर पढ़ा करें। वो लास्ट पैराग्राफ में आपको ये पता लगेगा कि इस पूरे पेपर में क्या रह गया है जो आप आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। इसी तरह जब आप अपनी डिस्कशन लिखें
तो अपनी डिस्कशन लिखते हुए आप एग्जैक्टली इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि आप अपने आखिरी पैराग्राफ में डिस्कशन में वो चीज जरूर बताएं कि जो आने वाले को मदद करे कि वो आप ही की रिसर्च को इससे अगले स्टेप पे लेके चला जाए। सो कंपोनेंट क्या है? ट्राई टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल रिलेशनशिप एंड जनरलाइजेशन शोन बाय द रिजल्ट्स, पॉइंट आउट एनी एक्सेप्शन और एनी लैक ऑफ कोरिलेशन एंड डिफाइन अनसेटल्ड पॉइंट्स। कि जो रिजल्ट्स में क्लियर नहीं है ना बातें, वो आप डिस्कशन में मजीद एलैबोरेट कर दें। शो हाउ योर रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन एग्री और कॉन्ट्रास्ट विद द प्रीवियस पब्लिश्ड वर्क। Discuss the theoretical implication of your work and any possible practical application. State your conclusion as clearly as possible and summarize your evidence for each conclusion, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसके बाद बेटे नेक्स्ट हेडिंग आती है एक्नॉलेजमेंट की। एक्नॉलेजमेंट में बेटे होता क्या है? यूजुअली आप एक्नॉलेज उनको करते हैं जिन्होंने रिसर्च में आपकी हेल्प की है। मैं एक्नॉलेजमेंट में एक चीज क्लियर कर दूं, ये हर जर्नल की इंस्ट्रक्शन में मेंशन होता है कि आप कभी अपने को ऑथर को एक्नॉलेज नहीं करते, याद रखना है। मतलब फॉर एग्जांपल आप 6 लोग हो, 5 लोग हो, 4 लोग हो जिन्होंने मिलकर पेपर पे काम किया और मिलकर पेपर लिख रहे हो और यही 4-5 ऑथर बनने वाले हो, तो आप ऑथर्स को कभी शामिल नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल आपका कोई मेंटर है, वो भी ऑथर है ना, तो फिर भी आप मेंटर को भी एक्नॉलेजमेंट में नहीं लेकर आते अगर वो ऑथरशिप में शामिल है। हाँ, अगर ऑथर में शामिल नहीं है फिर आप उसको आप एक्नॉलेज कर सकते हैं। सो एक्नॉलेज किसको करते हैं? नंबर 1, एनी सिग्निफिकेंट टेक्निकल हेल्प दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम एनी इंडिविजुअल इन योर लैब और एल्सवेयर, बट दैट पर्सन शुड नॉट बी योर ऑथर। The source of special equipment, culture or any other material, any outside financial assistance such as grants, contracts और fellowship। आपको पता है कई PhD की रिसर्चेज ऐसी होती हैं, मैं भी करंटली एक पे काम कर रहा हूँ इस वक्त, कि जिसकी ग्रांट का हम वेट कर रहे हैं, तो वो ग्रांट मुझे मेंशन करनी पड़ेगी कि मैंने वो ग्रांट किससे ली है, वो एक्नॉलेजमेंट में लिखना पड़ेगा। डू नॉट यूज द वर्ड विश, सिंपली राइट आई थैंक एंड नॉट आई विश टू थैंक। ये विश का वर्ड ना कुछ जगहों पे देखा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया कि विश ना ऐड करें, सिंपल लिखें कि आई थैंक, आई पर्सनली थैंक या आई थैंक आप लिखें इसमें। शो द प्रपोज वर्डिंग ऑफ द एक्नॉलेजमेंट टू द पर्सन हुज हेल्प यू आर एक्नॉलेजिंग। ये भी एक बड़ी ट्रिकी बात है, ये याद रखिएगा। आप एक्नॉलेजमेंट लिख देते हैं, एक दफा ऐसे हुआ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। हमने एक्नॉलेज किया एक सर को, लेकिन एक्नॉलेजमेंट लिखते हुए शायद हमसे लिखने में मिस्टेक हुई, तो हमने सही प्रॉपर उसको एड्रेस नहीं किया। जब वो पेपर पब्लिश हो गया ना, तो हमारे सर ने वो पेपर देखा, तो उन्होंने देखे, उन्होंने कहा यार ये आपने एक टेक्निकल मिस्टेक कर दी एक्नॉलेजमेंट लिखने में। तो उस वक्त ये बात समझ आई कि सर सही कह रहे थे कि इसका मतलब है कि जब एक्नॉलेजमेंट लिखे तो एक दफा सिर्फ एक्नॉलेजमेंट का पार्ट, पूरा पेपर नहीं, एक्नॉलेजमेंट का पार्ट आप अपने जिनका भी आपने एक्नॉलेज किया उनको सेंड करें, या उनको पर्सनली जाके दिखाते हैं, सर ये मैं आपको एक्नॉलेज करना चाह रहा हूँ, आप काइंडली इसको रीड आउट कर लें, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन इट और कुछ माइनस करना है तो काइंडली बता दें। तो आपको इग्नोर, क्योंकि ज़ाहिर है आप जिसको एक्नॉलेज कर रहे हैं जब वो पेपर पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगना चाहिए पढ़ के कि ओके यार इन्होंने मेरी हेल्प ली थी और इन्होंने आप मुझे एक्नॉलेज भी किया है, तो उसको इस वर्ड्स में होना चाहिए कि वन शुड बी अप्रिशिएटेड प्रॉपरली। और फाइनली रेफरेंसिंग आती है। बेटे रेफरेंस होना बहुत जरूरी है, रेफरेंस हम डालते आ रहे हैं पीछे। अच्छा, रेफरेंस कहाँ कहाँ हमने ऐड किया मैं अभी बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट में रेफरेंसिंग नहीं होती, इंट्रोडक्शन रेफरेंसिंग बिल्कुल होती है, मटेरियल मेथड में रेफरेंसिंग जनरली आती है जहां पे आप सैंपल साइज फार्मूला लगाते हैं उसके साथ रेफरेंस होता है, बाकी मटेरियल मेथड में रेफरेंस जनरली यूज नहीं होता। रिजल्ट्स में कोई रेफरेंस नहीं होता है। एंड देन डिस्कशन इज आल्सो फुल ऑफ रेफरेंसिंग। तो आपके एमरेड में से जो 2 कंपोनेंट फुल ऑफ रेफरेंसिंग होते हैं वो आपका इंट्रोडक्शन होता है फर्स्ट, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इज योर डिस्कशन पार्ट, ये फुल ऑफ रेफरेंसिंग होना चाहिए। So a list of all the references used in the text must be written। रेफरेंस जो ना मैंने हार्वर्ड आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, यूएचएस इसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन अब बहुत सारी स्टाइलिंग है। एपीए स्टाइल है, कुछ यूनिवर्सिटी उसको प्रेफर करती हैं। वैंकूवर स्टाइलिंग चलता है पेपर के लिए जर्नली ना, ये तो यूएचएस के लिए मैंने हार्वर्ड लिखा है, लेकिन जर्नली जो अब जर्नल्स में अप्रूवल है ना, दैट इज बेसिकली द वैंकूवर स्टाइल। ये जो लिखा है ना अल्फाबेट नंबर सिस्टम एक ये है, और एक साइटेशन ऑर्डर सिस्टम, ये ऑर्डर सिस्टम बेसिकली वैंकूवर स्टाइलिंग है, ये यूजुअली यही यूज होता है। So any paper not cited in the text should not be included। आपने ये ना हो कि आपने एंड पे रेफरेंस दिया हुआ है लेकिन पेपर के अंदर उसका जो आपने रेफरेंस दिया ही नहीं हुआ, एंड पे लिख दिया है, ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए। एंड पे रेफरेंस वही लिखें जो आपने अंदर लिखते हुए भी रेफरेंस दिया है। रेफरेंस लिस्ट अलाउ रीडर्स टू इन्वेस्टिगेट द सब्जेक्ट इन ग्रेटर डेप्थ। ये आपको कि देख भी तो सकता है ना कि आपने जो बात लिखी है वाकई आपने कहीं से लिया है या आपने अपनी तरफ से गप लगा दी है। जो अपनी तरफ से बात लिखने वाली है ना वो डिस्कशन पार्ट में ज्यादा आती है जहां आप अपनी रीजनिंग लिखते हैं। बाकियों में जो अगर अपने रेफरेंस लिखना होता है तो रेफरेंस में एग्जैक्टली वही बात लिखते हैं जो उसने लिखी होती है, हाँ इन योर ओन वर्ड्स, बस इतना चेंज करना होता है। बेटे रेफरेंस का मतलब पता है क्या होता है? रेफरेंस का मतलब होता है आप ना अगले बंदे को उसके काम का क्रेडिट दे रहे हैं। आपने उसका, अगर किसी ने कोई काम किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई काम किया और मेरे काम का कोई रेफरेंस देना चाह रहा है, तो वो मेरा नाम लिखे साथ कि यार देखो हमने इसके पेपर से लिया है, तो ये मुझे एक्चुअली वो क्रेडिट दे रहा है, तो रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है।
मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप रेफरेंस नहीं देते और किसी की बात मेंशन कर देते हैं तो ये प्लेजरिज्म में चला जाता है। प्लेजरिज्म आप समझते हो ना, कि आप किसी का डाटा उसके बगैर पूछे या उसको एक्नॉलेज किए बगैर कॉपी कर लो तो ये प्लेजरिज्म कहलाता है। सो रेफरेंस कंटेन ओनली द बुक्स, आर्टिकल एंड वेब पेजेस। जनरली हम यही करते हैं। आप यूजुअली ना इसमें आप कोशिश करें कि इसमें आप कोई अखबार की न्यूज या कोई ऐसी चीज आप रेफरेंस में इंक्लूड ना करें। इट शुड बी अ वैलिड बुक, अ पब्लिश्ड आर्टिकल और वेब पेज कैन बी इंक्लूडेड। फिर एथिक्स, राइट्स एंड परमिशन, ये खैर ये मैंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर दिया। कुछ जर्नल्स में मैंने देखा है, लेकिन ये इंटरनेशनल जर्नल्स में होता है जिसमें एथिक और राइट और परमिशन का भी आपको एक खाना अलग से बनाना पड़ता है, कि आपको एंड पे लिखना पड़ता है कि भाई ये कॉपीराइट है इसका, मेरे पास इसका कॉपीराइट है, कोई इसको ऐसे कॉपी नहीं कर सकता, उससे मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी। तो वो आप पूरा इस पर लिख देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जर्नल में यूजुअली ये वाला पार्ट नहीं होता। So it's finally over. The paper is finished. We have written it, and we have learned that how to write the paper. मैं जल्दी से आपको दोबारा एक रिवाइज करवा देता हूँ, शॉर्ट, जस्ट इन 2 minutes टाइम। आपने करना क्या होता है कि पेपर लिखने से पहले 2 चीजें प्री रेक्विजिट मस्ट हैं। आपको अपना जर्नल पता होना चाहिए कि आपने किसमें पब्लिश करवाने, और रिजल्ट्स आपके पास रिटन फॉर्म में। रिजल्ट्स के तो बल्कि आप टेबल, फिगर और उसका पैराग्राफ पहले से कंप्लीट करके रख लें जब आप साथ साथ रिजल्ट्स आते जाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, यू बिगिन बाय राइटिंग द इंट्रोडक्शन। आप कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद मटेरियल मेथड पे जाते हैं, फिर आप रिजल्ट्स अपने तो लिख लिए आपने, वो रखते हैं, फिर आप डिस्कशन लिखते हैं, एट द एंड एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। मैंने आपसे अपना मेथड शेयर किया था कि मैं क्या करता हूँ। मैं जब रिजल्ट्स लिख रहा होता हूँ उसके साथ ही मटेरियल मेथड, क्योंकि मुझे तो पता होता है मेरा स्टडी डिजाइन क्या है, पहले ही चूज हो चुका है, मेरा सैंपल साइज मुझे पहले से पता है, मेरा इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, जितनी हेडिंग्स आती हैं मटेरियल मेथड में वो सारी मुझे पहले से पता है, तो उनको लिखना ही है ना सिर्फ। तो मैं रिजल्ट्स के साथ साथ मटेरियल मेथड भी लिख लेता हूँ। जब मेरे रिजल्ट्स आ जाते हैं उनकी टेबल फिगर बना लेता हूँ, फिर उस पर डिस्कशन लिखता हूँ, डिस्कशन लिखने के बाद इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, और इंट्रोडक्शन के बाद में एब्स्ट्रैक्ट लिखता हूँ। अच्छा, इंट्रोडक्शन बाद में लिखने का कॉन्सेप्ट ये है, मैंने अपने कुछ मेंटर से ये चीज सीखी है, और मैं, ये स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है, ये कोई रूल नहीं है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपसे, आप इसको चाहे ना भी अप्लाई करें तो चलेगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने ये बात अपने मेंटर से सीखी है कि जो इंट्रोडक्शन होता है ना, बेसिकली ये वो होता है जैसे गार्निशिंग नहीं करते आप अपने खाने के ऊपर, जब आप खाना बना लेते हैं तो अक्सर ऐसे होता है कि गार्निशिंग बहुत अट्रैक्ट कर देती है। तो इंट्रोडक्शन लिखने में बिल्कुल गार्निशिंग वाला तरीका है, कि इंट्रोडक्शन आपने देखा है इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल है, तो इन्वर्टेड पिरामिड मॉडल इस तरीके से चलना चाहिए कि वो पिरामिड एंड ही उधर हो कि जहां पे आपके रिजल्ट्स ऑलरेडी उसको फॉलो कर रहे हैं। ये ना हो आपने पिरामिड कहीं और एंड करवाई हुई है और रिजल्ट्स कहीं और लेके जा रहे हैं। तो इसीलिए रिजल्ट्स और डिस्कशन अगर पहले लिखी हो ना, तो इंट्रोडक्शन बाद में लिखना आसान हो जाता है यूजली, लेकिन ये रूल नहीं है, आप इंट्रोडक्शन पहले भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। सो दैट्स ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। थैंक यू वेरी मच। ओके, इफराज जाहिद, आपने अभी मैसेज में पूछा है कि हमारा, नहीं बेटे, हमारे एसएलएमसी का अपना जर्नल नहीं है, इट वाज इन प्रोसेस 2 years ago। हमारे प्रिंसिपल थे जाहिद कमाल सिद्दीकी साहब, तो उस वक्त उन्होंने काफी हद तक इसको प्रोसेस करवा भी लिया था, मैं ही इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा था। हम इसको काफी आगे लेके जा चुके थे, डॉक्टर रईस थे, मैं थे, हम इस पे लगे हुए थे काम पे। इसके असल में ना जो जर्नल अप्रूवल, जो अपने किसी भी, अगर आपने अपना जर्नल अपना छपवाना है ना, तो उसके लिए ना एक्चुअली हमें गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, फिर सेक्रेटेरिएट से। तो हम इसमें 2-3 स्टेप आगे थे, लेकिन वो प्रिंसिपल साहब ट्रांसफर हो गए तो वो स्टॉप, प्रोसीजर रुक गया। तो नो, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव आवर जर्नल। सर, लिटरेचर रिव्यू की क्या सिग्निफिकेंस है रिसर्च पेपर में? मतलब वो अलग से लिखना होता है या मतलब उसको स्किप किया जा सकता है? ओके बेटे, जर्नली ना लिटरेचर रिव्यू को, ये आपका ना चॉइस होती है। लिटरेचर रिव्यू इज मस्ट इन राइटिंग योर थीसिस। जब आप अपना थीसिस लिखते हैं ना, तो तब तो लिटरेचर रिव्यू का मस्ट पार्ट होता है। लेकिन जब आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली बिकम्स अ सब पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। आपने देखा हो कि जो हमने इंट्रोडक्शन में बातें लिखी हैं वो हमने पास लिटरेचर को लेके लिखी हैं, तो वो इंट्रोडक्शन का एक सब पार्ट बन जाती है। तो लिटरेचर बिल्कुल मस्ट नहीं होता। एक ओरिजिनल आर्टिकल लिखते हुए आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, हाँ, लिटरेचर मस्ट हो जाता है अगर आप एक रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं। रिव्यू आर्टिकल एक हायर एक्सपर्टीज है पेपर लिखने की, उसमें लिटरेचर रिव्यू आपको लिखना मस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको बताना होता है कि आपने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हैं, कितनी डिटेल में पढ़े हैं, उसकी रेफरेंसिंग भी ज्यादा होती है ओरिजिनल आर्टिकल से। लेकिन एज फार एज योर क्वेश्चन कंसर्न्स अबाउट दिस ओरिजिनल आर्टिकल, नो, लिटरेचर रिव्यू इज नॉट मस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ, सब पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन।
Have I answered your question correctly? जी सर, थैंक यू। Okay, welcome. And any other question? Yes, sir. Sir, how much is it recommended for us at this level to get published at the journal of other colleges like ours? How much papers are recommended, you are asking me? How much is it recommended for us at this level, at our level, to get published at the journal of other colleges? नहीं, हाउ मच से मैं समझ नहीं रहा, क्वांटिटी किस चीज की पूछ रहे हो? पेपर्स की क्वांटिटी पूछ रहे हो, लिखने की क्वांटिटी पूछ रहे हो? लिखने की सर। ओके, बट उसमें ये होता है कि आप देखें, किसी भी जर्नल में आप लेकर जाएं पेपर को, वो ये जर्नल की चॉइस जो है ना उसकी एक ही है। जर्नल का चॉइस का एक क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं। जर्नल की चॉइस आपने करनी है एचईसी के अकॉर्डिंग। मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ, मैं आपसे लिंक भी रेस से शेयर कर दूंगा। रेस पीपल विल शेयर विद ऑल ऑफ यू द पार्टिसिपेंट्स कि ना एक एचईसी की साइट है जिसमें एचईसी ने ना एक दिया हुआ है कि वहां पे आप किसी भी जर्नल का नाम लिखें, उसमें लिंक दिया हुआ है, उस जर्नल को क्लिक करें। अगर तो वो वहां पे शो हो रहा है ना, फिर तो वो जर्नल अप्रूव्ड है। लेकिन अगर वो वहां पे शो नहीं हो रहा ना, तो डू नॉट गो फॉर दैट जर्नल। ये ना आप इतना काम करें, पेपर पब्लिश भी करवा लें, लेकिन पेपर पब्लिश करवाने के बाद पता लगे कि आपका वो पेपर एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा कहीं पे। देखें, दो चीजें हैं ना, एक तो आपने लोगों को अपना डाटा शो भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है कि डाटा शो करने के साथ साथ उस पेपर का आपको फ्यूचर में फायदा भी हो, कि आपकी कहीं प्रमोशन में, आपके इंटरव्यूज में, आपको जॉब सीख करने में उसकी हेल्प होनी चाहिए। तो एक जो अनरिकॉग्नाइज्ड जर्नल है, जो एचईसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, उसमें अगर आप पेपर पब्लिश करवाते हैं तो वो नुकसानदेह है। तो इसलिए पहले एचईसी की साइट पे जरूर जाके चेक करें कि वो पेपर पब्लिश है कि नहीं। और फिर जहां तक है कि आपको कितना लिखना है, तो बेटे मैं तो आपको यही कहूंगा कि एटलीस्ट एक साल में एक पेपर तो आप लिखें। ये तो आप जरूर करें और कोशिश करें। और मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, अगर आप 4-5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना रिसर्च पेपर पे, तो आप काम करें कि आप एक रिसर्च पेपर में अपनी अपनी सब हेडिंग्स डिवाइड कर लें। मतलब इस दफा ये कर लें कि इस पेपर के अंदर जो है ए पर्सन जो है इंट्रोडक्शन लिखेगा, बी जो है मटेरियल मेथड लिखेगा, सी रिजल्ट लिखेगा, डी डिस्कशन लिखेगा। फिर नेक्स्ट पेपर में ये रोटेट कर लें। नेक्स्ट पेपर में जिसने डिस्कशन लिखी है इंट्रोडक्शन पे चला जाए, जिसने रिजल्ट लिखे है मटेरियल मेथड पे चला जाए। इस तरह फायदा क्या होगा कि आप 4-5-6 रिसर्च पेपर करेंगे, हर बंदा हर पार्ट को लिख लेगा, और उसमें आसानी ये हो जाती है कि काम भी थोड़ा होगा, क्योंकि ज़रा जब एक ही पार्ट लिखना है तो वो लिखना भी आसान हो जाता है। तो दैट्स हाउ वी कैन मैनेज दैट वर्कलोड। बिल्कुल बेटे, ये एमन जफर ने पूछा है कि केस रिपोर्ट, बिल्कुल लिख सकते हैं केस रिपोर्ट, लेकिन केस रिपोर्ट लिखने के लिए ना एक इंपॉर्टेंट उसका प्री क्राइटेरिया ये है कि केस रिपोर्ट किसी ऐसे केसेस की होनी चाहिए जो कि एक रेयर केस है। और रेयर केस से मुराद ये नहीं होती कि दुनिया में रेयर है, रेयर केस से मुराद ये होती है कि आपकी विसिनिटी में रेयर है। वो यहाँ पे एंडेमिक नहीं था, लाइक हेपेटाइटिस सी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो हेपेटाइटिस सी की केस रिपोर्ट लिख रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केसेस नहीं मिलते हैं, वो कोई रेयर केस साहिवाल में निकला है तो उसको प्रेजेंट करना चाहिए। तो केस रिपोर्ट यूजुअली क्लिनिशियन लिखते हैं, या वो लोग लिखते हैं कि जो जिन्होंने कोई न्यू केस देखो। स्टूडेंट बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ज़ाहिर है आप लोग न्यू केसेस को आपको इतना नहीं पता होता, तो वो यूजुअली क्लिनिशियन लोगों को पता होता है तो वो उसको एड्रेस करते हैं, लेकिन बिल्कुल लिख सकते हैं। No, I will not recommend. If I will not recommend to write case report as that very initial level. I will recommend you to first go through the original articles, और ओरिजिनल आर्टिकल पहले लिखो, 4-5-6 ओरिजिनल आर्टिकल लिख लो, then shift your attention towards the case reports. फिर इफ्रा आपने ये भी पूछा कि कैन समवन स्टार्ट विद द सिस्टमैटिक एनालिसिस? नो, प्लीज नो। इनिशियल लेवल पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, एक मुश्किल काम है। अगर आप सिस्टमैटिक एनालिसिस बेसिकली रिव्यू आर्टिकल को कहते हैं, आप रिव्यू आर्टिकल में स्ट्रेट अवे जंप कर देंगे ना, तो आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे बजाय लर्न करने के। तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा, ऑलवेज बिगिन विद राइटिंग द ओरिजिनल आर्टिकल, डूइंग द ओरिजिनल रिसर्च वर्क। जब उसमें फ्लो में आ जाए ना, आपको समझ आ जाती है कि ओरिजिनल वर्क मेरे लिए करना और लिखना मुश्किल नहीं रहा है, देन यू कैन ऑलवेज शिफ्ट टू द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। जी, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। सर, अगर यस, दो तरह के रिसर्च जर्नल्स हो, यानी कि एक सिर्फ जनरल किस्म का हो कि रिसर्च जर्नल ऑफ साहिवाल मेडिकल कॉलेज, और ठीक एक है, स्पेसिफिक हो रिसर्च जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी या रिसर्च जर्नल ऑफ ठीक है, कैंसर, वो भी ठीक स्पेसिफिक है, हो जाए, तो हम ठीक है। हमारा आर्टिकल किस में हमें पब्लिश करवाना चाहिए? अच्छा, अगर इस तरह की टाई हो जाए ना, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा आप इम्पैक्ट फैक्टर देख के पब्लिश करवाएं। आप फिर जर्नल का नाम देख के पब्लिश ना करवाएं। एक हर जर्नल का ना एक क्राइटेरिया होता है, उसको इम्पैक्ट फैक्टर बोलते हैं।
इम्पैक्ट फैक्टर बेसिकली ये जर्नल का मतलब ये होता है कि जितना हाई इम्पैक्ट फैक्टर होगा उतना वो वैलिड जर्नल है, उतने उसके आर्टिकल वैलिड है, उतना लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उतना उसके काम को ओरिजिनल समझते हैं। तो आप उसमें वो आप किसी भी जर्नल को ओपन करेंगे उसकी साइट को, तो हमेशा उसमें उसका इम्पैक्ट फैक्टर मेंशन होता है। तो जब भी आपको 2-3 जर्नल की चॉइस करनी हो तो आप इम्पैक्ट फैक्टर को सामने रखें, ना कि आप जर्नलाइजेशन को या पॉपुलैरिटी को सामने रखें। हाँ, कभी कभी आपके जो एमफिल पीएचडी के कुछ ऐसे रिसर्च के काम होते हैं कि वो आपने उसी के जर्नल में लेके जाना होता है। लाइक अगर किसी ने माइक्रोबायोलॉजी पे काम किया पीएचडी में एमफिल में, तो वो माइक्रोबायोलॉजी के जर्नल को प्रेफर करे। हाँ, उसमें ये जरूर देख ले कि माइक्रोबायोलॉजी का वो वाला ले जो अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर वाला है। तो इम्पैक्ट फैक्टर इज द आंसर इन दिस केस फॉर जर्नल। Okay, thank you, sir. वेलकम। बेटे इफ्रा आपने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू ज्वाइन यू एज अ ट्रेनी। बेटे देयर इज नो प्रोसीजर, जस्ट मीट मी इन माय ऑफिस एंड वी विल स्टार्ट बिगिनिंग इन समथिंग। बस आजकल थोड़ा ये हुआ है कि आजकल मेरे पास वर्कलोड काफी ज्यादा है। आई एम ऑलरेडी इन्वॉल्व विद मेनी रिसर्च ग्रुप, नॉट ओनली एट साइवल मेडिकल कॉलेज बट ऑल्सो इन अदर मेडिकल कॉलेज। अभी अभी हमने कई में काम अपना कंप्लीट किया है, रावलपिंडी में हमने 2 रिसर्च पेपर अपने कंप्लीट किए हैं। वो शुक्र है, वो जरा मेरा वर्कलोड थोड़ा कम हो गया है। और बाकी अभी अपने मेडिकल कॉलेज में तो है ही है, साहिवाल में बहुत सारे बच्चे मेरे साथ हैं। अभी रिसेंटली अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, वहाँ सेकंड ईयर के बच्चे हैं, कुछ फर्स्ट ईयर के दोनों, उनके साथ मिलकर शुरू करने जा रहा हूँ। तो वर्कलोड तो है, लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू ज्वाइन मी यू आर मोर देन वेलकम। जस्ट मीट मी इन माय ऑफिस आफ्टर वेकेशन, इंशाल्लाह विल सॉर्ट समथिंग आउट। Okay, are there any other questions? Okay, so I think we should wind up. I thank Dr.